Hello guys, welcome you all. Let's start the mathematics paper second for our HSC. Until the last lecture, we have seen two chapters of mathematics paper first, that is mathematical logic as well as matrices. Very easy topic was there. Again, one of the very interesting and very easy topic we are going to start in mathematics paper second, that is named as derivatives, or we can say differentiation. Actually, this topic, basics of this topic we have already studied in the 11th standard in paper second. Some things we have to revise here again, because if we have not revised the basics, we cannot get meanings of the new topics of this chapter. So let's revise some things which we have already studied in 11th standard for derivatives. Now, what is meant by a derivative? Very simple thing is there. Suppose y is equals to f of x is the real valued function of real variable x. Y is equals to f of x is the real valued function of real variable. What is meant by real valued function? Function का value real है. Function का value real means from the real numbers. रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर्स में होगा ऑफ रियल वेरिएबल एक्स. रियल वेरिएबल का भी वैल्यू रियल नंबर्स में होगा. इसका मतलब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. एक्स एंड वाई मीन्स फंक्शन एज वेल एज वेरिएबल बोथ लाइज इन द रियल नंबर्स. नाउ as we study this topic in the plane coordinate system, that means x and y lies on the standard coordinate axis. A basic thing is there. ठीक है. अभी देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एफ फंक्शन है, हम बोल रहे हैं इट इज द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x. अभी इसमें सब टॉपिक का जो मीनिंग है वो है रियल वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी. वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी. एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, इट कैन वेरी इट्स वैल्यू. सो इफ वी कंसिडर सपोज एक्स इज द वेरिएबल एंड इट चेंजेस टू एक्स प्लस एच, वेयर एच इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट. एच इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. एच क्या है? x में स्मॉल इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? x इज वेरिएबल, सो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन दैट वेरीज अप टू द नेक्स्ट पोजिशन x प्लस एच, और वी कैन से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x माइनस एच. मीन्स h इज द वेरिएशन इन x, विच इज द स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल. h is the small variable. As x changes to x plus h, we can say that f of x changes to f of x plus h. सही बात है. एफ ऑफ एक्स चेंजेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच. अभी डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल. मोर इन डिटेल इफ वी सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वन, दैट इज द डेरिवेटिव. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. अभी इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये एक सवाल आता है. ठीक है ना. अभी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ए जो फंक्शन है इसमें x का वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली y का वैल्यू चेंज हो जाएगा. x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा. इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x. y डिपेंड्स ऑन x. अभी y डिपेंड्स ऑन x मीन्स x इज इंडिपेंडेंट. एज x इज इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिकली y इज डिपेंडेंट. So what is our definition? Rate of change of dependent variable means rate of change of y with respect to independent variable means with respect to x. Rate of change of y with respect to x. इसका मतलब if we take change in y, therefore change in y means change in f of x. y is कैसे आएगा change in y? f of x plus h minus f of x. Final minus initial, that is change. एंड चेंज इन x कैसा आएगा? चेंज इन x इज x plus h minus x, that is equals to h. And we know that
and therefore taking the derivative as f dash of x is equals to limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x upon h, where this is the change in y to change in x. चेंज इन y टू चेंज इन x इसका रेशो है, ये रेशो है, and as we take the limit as h tends to 0 means the change approaches towards 0 means very small. If the change is very small, then the the value of ratio is, value of ratio is f of x plus h minus f of x, change in y upon change in x. This h is very small. As it is very small, it approaches towards 0. So applying the limiting process to the ratio, limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x upon h, increment in y upon increment in x, where increment in x is negligibly small, approaches towards 0. So here h tends to 0. So this small value, it is called as the f dash of x, which is the derivative of y with respect to x. यही है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. It's called a derivative of y with respect to x. इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y. एक्चुअली क्या है, चेंज इन y हमें पता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x है, चेंज इन x जो है वो h है एंड h इज वेरी स्मॉल. सो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y अभी देखा था हमने वेलोसिटी में. देखिए आप थोड़ा सा हम मूव होते हैं अलग टॉपिक पे. ये कहाँ पढ़ा है हमने, पता है, हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा था फिजिक्स में. क्या था डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, रेशो लिया था. सही बात है, याद कीजिए वो टॉपिक को. सही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हमने चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम लिया था, बस उसी तरीके से लेना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. अभी चेंज इन x कितना है? वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल. दैट मीन्स दैट चेंज इन x approaches towards 0. That change in x approaches towards 0. So we have applied the limiting process to that ratio f of x plus h minus f of x upon h. हमने क्या किया, उसको लिमिट अप्लाई कर दिया. अगर उसको लिमिट अप्लाई कर दिया, जो क्वांटिटी हमें मिल रही है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश ऑफ x. एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज, एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f of x plus h minus f of x upon h is called, इसको क्या कहते हैं पता है? a first principle of derivatives. It's called a first principle of derivatives. इसी को कहते हैं first principle of derivatives. Limit h tends to 0 of f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ये जो क्वांटिटी मिलेगी इसको कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, इसके बाद ये जो है ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स. इसके बाद हम डेफिनेशन बनाएंगे डेरिवेटिव का. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. ये कौन सा है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा? ये y है. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y है. विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन सा है? x. इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे. सो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज कैसा आएगा फिर? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला है. और हमने क्या किया था, इसी फार्मूला को यूज़ करके हमने बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ उसमें मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ना. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला हमने देखना है, उसको हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. अभी y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है. सो एज x चेंजेस ऑटोमेटिकली y चेंजेस.
x चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y भी चेंज होगा, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x। सो x में जो चेंज है उसको हमने h मान लिया, वेरी स्मॉल चेंज है। सो x में चेंज वो जो h मान लिया हमने, सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशो ले लिया, लेकिन चेंज बहुत निग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। सो हमने क्या किया, उसको लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई कर दिया। जब ऐसी चीज आती है, अगर चेंज बहुत बड़ा है या तो फिर बहुत छोटा है, तो हमें लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिटिंग प्रोसेस अप्लाई कर दिया, h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, h इज चेंज इन x। सही बात है, h इज अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, दैट मीन्स व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल, देन दिस रेशो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये आप नोट बना लीजिए इसका। अभी सपोज the derivative of y is equals to f of x is taken at the point x is equals to a। सपोज हमने कहा लेना है डेरिवेटिव, x इक्वल्स टू a, इस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव लेना है तो वो डेरिवेटिव कैसे आएगा, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस f dash of a, because f dash of x at x equals to a ना, so x का वैल्यू a हो जाएगा। so हम यहाँ पे क्या करेंगे, f dash at a it is equals to limit h tends to 0 of f of, instead of x we take a here, f of a plus h minus f of a upon h. This is what the derivative of a function at x equals to a। ये क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a रहेगा। अभी डेरिवेटिव में अगर हमने वो चेंज इन x जो है, सपोज हम क्या करेंगे, एक नया पॉइंट लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। सपोज चेंज इन x इज इक्वल्स टू डेल्टा x। क्या किया हमने, चेंज इन x जो h था उसको क्या मान लिया, डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x है, एंड हेंस एंड डेल्टा y इज करस्पॉन्डिंग, डेल्टा y क्या है, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y ड्यू टू इंक्रीमेंट इन x, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन x। क्या है, डेल्टा x चेंज इन x हमने मान लिया, सो डेल्टा y क्या हो गया, चेंज इन y हो गया। ये चेंज इन y क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन x हुआ, x में चेंज होने की वजह से y में भी चेंज हो गया। ठीक है, सो डेल्टा y इज चेंज इन y। अगर हम देख लेंगे, x था, x क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, सो y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। सही बात है, एंड देयरफॉर चेंज इन x अपॉन चेंज इन y कैसे आएगा, so f dash of x will be, that is limit delta x tends to 0 of, yes it is, कैसे आएगा, y plus delta y minus y upon x plus delta x minus x, and that goes to limit delta x tends to 0 of delta y upon delta x, and therefore कैसा आएगा हमारा f dash x, फिर f dash x जो है वो ऐसे हो जाएगा, f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ, क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाय dx। इट इज द अनदर नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। हमने बहुत सी बार देखा भी है इससे पहले, ठीक है ना। सो dy बाय dx इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी का मतलब f डैश x भी होता है। dy बाय dx का मतलब ही f डैश ऑफ x होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, दैट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे y आएगा, डेरिवेटिव ddx। ये जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। यू कैन से y डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, ओके।
So d dx of y, or you can say dy by dx, or you can say capital dx of y, or you can say y dash, or you can say f dash of x. All these are the notations for derivative. Another notations for derivative. हमारा मैथमेटिक्स में एक एडवांटेज हमें मिलता है, एक ही चीज़ को हम अलग अलग नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है. सो dy by dx का मतलब इटसेल्फ f dash of x होता है. इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ x, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ y. डेरिवेटिव ऑफ f of x मीन्स f dash of x. डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स dy by d dx of y. डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स कैपिटल dx. ये जो है कैपिटल dx होगा, ये d अपॉन dx हो गया, ये y. दीज आर कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ऑपरेटर्स. इनको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशियल ऑपरेटर्स बोलेंगे. ठीक है. सो आप पूरी तरीके से इसका नोट बना लीजिए. अभी हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे, हम देखेंगे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड किए थे. सपोज हम एक फंक्शन लेंगे, सपोज f of x इज इक्वल्स टू k. ओके. अभी डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड करना हो f of x इक्वल्स टू k का, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किए थे. ठीक है. हमने फर्स्ट फंक्शन लिया कांस्टेंट फंक्शन, f of x इक्वल्स टू k हमने ले लिया है. देखिए, लेट f of x इज इक्वल्स टू k. हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखा था. क्या था फार्मूला हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h था. सही बात है. ये हमारा फार्मूला फॉर डेरिवेटिव था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स. और हमने क्या किया है, हमने इसी फार्मूला को यूज करके बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हुए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन. सो f of x इक्वल्स टू k. सो f of x प्लस h. अभी चेंज कहाँ पे हुआ है? x में हुआ है. इस k में x का कुछ संबंध है? इसका कुछ रिलेशन नहीं है x के साथ. इसमें x है ही नहीं पहली बात. सो ये क्या आएगा? फिर से k ही आएगा. सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या आएगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यस इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. चलिए भाई, सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या आ गया था? इट इज k माइनस k अपॉन h. इफ यू ऑब्जर्व k माइनस k 0 अपॉन h इज 0 एंड लिमिट ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ. सही बात है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. इसका मतलब हुआ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है. अगर हम सपोज आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे, सेकेंड केस में आइडेंटिटी फंक्शन लेते. चलिए, आइडेंटिटी का डेरिवेटिव हम फाइंड करके देखेंगे. सपोज f of x is equals to x. f of x is equals to x. x means identity function. चलिए भाई, so given the function, क्या फंक्शन गिवन है आपको? f of x equals to x. so f of x plus h क्या आएगा? x changes to x plus h. so x changes to x plus h. सही बात है. चलिए फिर, so by first principle of derivatives, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यस, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. सही बात है. चलिए, उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h क्या है? इट इज x प्लस h है. समझ में आ रहा है? f ऑफ x प्लस h का वैल्यू हमने फाइंड करके रखा था, वो x प्लस h था, माइनस x अपॉन h. कुछ नहीं कर रहे हम लोग. हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन f ऑफ x और x प्लस h उसका वैल्यूज डाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम लोग. ठीक है ना. और यहाँ पे x माइनस x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h अपॉन h. h विल गेट कैंसल, दैट इज इक्वल्स टू 1, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब क्या हुआ? So derivative of x is always 1 with respect to x. Derivative of x with respect to x, that is always 1.
सही बात है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया था, वैसे आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है 1। सो अभी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आया, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y भी 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m भी 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा। समझ में आ रहा है? सो डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ दैट इज ऑलवेज 1, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ दैट इज ऑलवेज 1 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज 1। सही बात है, आप नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अभी हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये तो बहुत मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गया फिर से इसमें, है ना। लेकिन मैंने पहले भी बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपको ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, और उसमें डेरिवेटिव वो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एक 2-3 फंक्शंस हम और लेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे, ठीक है ना। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। चलिए भाई, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। सो व्हाट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज साइन एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस एच। सो हियर ऑल्सो एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस एच। सही बात है। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, यस, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है? इट इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप लोग? ठीक है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अभी यहाँ पे फैक्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंगल फार्मूले हमने देखे थे, साइन फैक्टराइजेशन फार्मूले हमने देखे थे, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू प्रोडक्ट कन्वर्जन के फार्मूले हमने देखे थे चैप्टर नंबर 3 में, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में, 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स फर्स्ट में, ठीक है ना। सो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, इट इज साइन सी माइनस साइन डी, साइन ऑफ सी minus sin of d, that was the result. If you remember, yes, what was the result? Sin c minus sin d, it is sin c minus sin d, that is 2 into cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2। हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2 into cos of, yes, c plus d means x plus h plus x upon 2 into sin of c minus d x plus h minus x upon 2 whole divided by h। सही बात है, हमने ये रिजल्ट को यूज कर दिया यहाँ पे, 2 times cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2। ओके, सो x एंड माइनस एक्स विल गेट कैंसल। क्या रहेगा यहाँ पे? इट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2 टाइम्स, यस, इट इज cos ऑफ x प्लस x ट्वाइस x प्लस h अपॉन 2, सही बात है, इनटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा है? h अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय h itself। okay, so that is equals to limit h tends to 0 of, हाँ, अभी क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड कर दिया, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सो 2 अपॉन h, सो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस x अपॉन 2 मीन्स ओनली x प्लस एच अपॉन 2, एक्स प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एच अपॉन, सही बात है, कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 इज x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एच अपॉन 2। ओके, सो 2 अपॉन h जो है, ये h हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइन को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना।
सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ cos ऑफ x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h अपॉन 2। क्या किया हमने, ये 2 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को भेज दिया, और वी कैन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या किया, ये h/2 जो था ये हमने साइन का डिनोमिनेटर एडजस्ट कर दिया, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में एडजस्ट होगा, और लिमिट एज x टेंड्स टू 0 होगा तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे साइन h/2 अपॉन h/2 आ गया तो वो 0 होने वाला है, ठीक है ना। सो सेपरेटिंग द लिमिट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ cos ऑफ x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, क्या हो जाएगा ये, इट इज इक्वल्स टू हाँ cos ऑफ x प्लस 0 अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ x। क्या आया ये वैल्यू, ये f डैश x का वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज इक्वल्स टू cos x। इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आएगा। बस यही मेथड फॉलो करके हमने सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हुए हैं। जो डेरिवेटिव्स आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप सभी ये डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला है, डेरिवेटिव्स के जो रिजल्ट्स है, वो सभी रिजल्ट्स आप आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप नोट करेंगे ऐसा मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही में लिखेंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट्स आपको पता नहीं चलेंगे, पता नहीं होंगे तो आप डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो हमें पता ही होने चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनके डेरिवेटिव्स है फंक्शन और डेरिवेटिव। सपोज कांस्टेंट फंक्शन जो कि हमने फाइंड किया था उसका डेरिवेटिव 0 आता है। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल्स टू x, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। y इज इक्वल्स टू x रेस टू n, x रेस टू n पावर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 आएगा। सो इसका मतलब क्या होता है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, यूजिंग दैट फार्मूला डायरेक्टली एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 आया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट इज डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 100 इंटू एक्स रेस टू 100 माइनस 1 मीन्स एक्स रेस टू 99, इस तरीके से, ठीक है ना। सो इट इज़ पावर फंक्शन एक्स रेस टू n, उसका डेरिवेटिव जो है वो n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 आएगा। सपोज y इज इक्वल्स टू रूट एक्स से फंक्शन है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा। उसके बाद सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही आता है, ठीक है। a रेस टू एक्स आएगा तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ये आप लगे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी डेरिवेटिव सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर्स बराबर मिलेंगे। वैसे भी आपने 11th स्टैंडर्ड में सभी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, log x टू द बेस e, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस है, ये e जो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। log x का डेरिवेटिव, क्योंकि हम बहुत टाइम पे ये लिखते नहीं है, लिखा नहीं है मतलब बेस e है इसका, ठीक है। जब log का बेस हमने लिखा नहीं होता है तो वो बेस ऑटोमेटिकली e होता है, e मीन्स नेचुरल लॉगरिथम। सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, ठीक है। जब बेस लिखा नहीं हो तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अभी देखिए यहाँ पे बेस e था तो 1 अपॉन x आ गया, चेंज कर दिया log x टू द बेस a, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट बेस अगर आएगा तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, उसको log a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड किया था वो cos x आता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x आता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x आता है। ये जो है ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, इनके भी नोट आप आपकी नोटबुक में बना लीजिए।
क्योंकि ये हमें बार बार लगने वाले हैं, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो टाइम पे हमें इसका यूज़ होने वाला है। तो आप इसका नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स भी देखे थे। फर्स्ट रूल, इफ y इज इक्वल्स टू u प्लस v। अभी y जो फंक्शन है, इट इज फंक्शन विच इज द सम ऑफ टू फंक्शंस। u इज अगेन द फंक्शन ऑफ x, v इज अगेन द फंक्शन ऑफ x एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। मतलब तीनों के तीनों जो है y, u एंड v फंक्शंस ऑफ x है। मतलब क्या है कि y दो फंक्शंस की सम अगर होगा, y is equals to u plus v means summation of u plus v, then dy by dx that is equals to derivative of first function plus derivative of second function, ठीक है। that is the first rule. It is second, if y is equals to u minus v, suppose subtraction of two functions है function y, then derivative क्या आएगा उसका, dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx आएगा, ठीक है। ये हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रूल्स। थर्ड रूल, सपोज इफ y इज इक्वल्स टू u इंटू v, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका रूल हमने प्रूव किया था 11th में, ये सब के सब हमने प्रूव किए हुए ऑलरेडी, ठीक है ना। क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस अगर होगा तो फर्स्ट फंक्शन केप्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन विल बी केप्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इट इज रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वन वाज फोर्थ रिजल्ट, इफ y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए u अपॉन v दो फंक्शंस का ये क्या है, डिवीजन है। सो सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर, that is the derivative of division of two functions। u अपॉन v अगर होगा तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। इस रिजल्ट को भी हमने 11th में प्रूव किया था, ठीक है ना। सो इट इज रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट एंड फिफ्थ रूल, इफ y इज इक्वल्स टू k इंटू यू। अभी इसको क्या हो गया, ये कांस्टेंट अटैच आ गया u फंक्शन को, ठीक है ना। सो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, k इज द कांस्टेंट इज केप्ट एज इट इज इंटू du बाई डी एक्स। क्या हो गया, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव का इफेक्ट नहीं, अभी हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। लेकिन अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, याद रखना है आपको। अकेला कांस्टेंट अगर हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होना है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट अगर कुछ फंक्शन को अटैच आ गया, अभी u इज द फंक्शन ऑफ x, ये u जो है ये फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट के फंक्शन ऑफ x को अटैच आ गया। सो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव, जैसे कि लिमिट में हमने लिया था, लिमिट में डेरिवेटिव का इफेक्ट, लिमिट का इफेक्ट कांस्टेंट पे नहीं होता है, देखा था हमने लिमिट्स में। बस उसी तरह से कांस्टेंट अगर वेरिएबल या फंक्शन को अटैच आ गया तो वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेंगे हम, लेकिन कांस्टेंट पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। कांस्टेंट विल बी केप्ट एज इट इज, बट इफ द कांस्टेंट इज अलोन, अकेला हो तो वो जीरो हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट आ गया तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट अगर फंक्शन को अटैच आ गया तो वो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हमने लेना है वहाँ पे, ठीक है। दीज आर द रूल्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ फंक्शंस विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। इनका यूज़ करके हमें स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स जो है वो फाइंड करने हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा था 11, ये जस्ट रिवीजन था, ये जस्ट हमने रिवाइज किया है। मैं फिर आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्या कीजिए, सभी रूल्स जो है डेरिवेटिव चैप्टर जो हमने 11th में पढ़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर आप वहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, सभी रिजल्ट्स को आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, सभी रूल्स को आपकी नोटबुक में आप लिखिए
आप जब सभी रूल्स पे कीन एंड क्लियर होंगे तो आपको आगे जाके जो हमारा HSC का मैथमेटिक्स का स्टार्ट है, जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आपको यकीनन कह सकता हूँ कि आपको बहुत इजी ये डेरिवेटिव चैप्टर जाएगा। आप सभी को मैं यहाँ पे शुभकामनाएं दूंगा डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूरा मैथ्स पेपर सेकेंड इन्हीं पे डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड है इन दोनों चैप्टर्स पे। हमको क्या करना है, दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। अगर हमें डेरिवेटिव आ गया, हमें इंटीग्रेशन आ गया, तो हमारा पेपर सेकंड क्लियर हो गया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे डेरिवेटिव चैप्टर 11th का, और फिर सीधे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव्स का 12th में, ठीक है। सो आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज़। प्रेस द बेल आइकॉन देयर ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।